Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm live in my evening session. So I'm just going to go on Facebook and check who's live with me at the moment so I can just start with the session. And in the meantime, those of you who are watching, you can always pour your suggestions and comments in the inbox and let me know what this topic is about, or what do you perceive this topic is going to be about. Okay, so and you know what, I can give you a hint about this topic, cause this topic is related with one of the suggestions which you people gave me yesterday, and there was one person over here and he wanted me to talk about this topic. So this topic is dedicated to him. So he was so curious about knowing about this topic, though I did discuss a bit in yesterday's session, but today I'm going to discuss it in detail. Jan Muhammad, Walaikum Assalam, and thank you for joining and watching this session. I'm fine, Alhamdulillah. I can see others as well who have joined this session, and let's see if I can see more people, so I can just start with the session. And those of you who have no idea about this topic, you can go on Facebook on my post, and you can see what I plan to talk about today. So this topic, it's basically diverted towards parents and roles of parents. So जो पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स टू बी हैं, for parents to be it's too early, but still if you have some knowledge in advance, it's always better. Okay, so I cannot see myself at the top of my screen, but I can see others at the top of my screen. So I'm just going to reload and just let me check. Okay. So I'm just going to start. Any ideas? Anyone wants to guess what this topic is about? So do let me know. And if you can't guess, I'm just going to tell you and let you know what this topic is about. So, okay. So yesterday there was someone, and he wanted me to talk about the gap that has come between parents and children due to the advancement of technology and the digital digital landscape and digital scenario. So that's what I plan to talk about, that is it really the technology that has taken children and parents far away, or is it something else? Or even if it is technology, then what are the ways or what are the solutions as parents we need to put into our daily lives to reduce this gap? So that's what I'm going to talk about, and I'm just going to start. And just in the start, I would say that firstly, in order to tackle the whole problem, what we need to do is we need to understand the digital media or the digital technologies or the digital landscape. So उसमें जो है देखें, you need to, as parents, this is specifically for parents, and ये वाला जो सेशन है, it's more directed towards parents जो कि ये problems face करते हैं and they don't know how to get over it or what to do in certain circumstances when it comes to technology. So सबसे पहले तो as parents you need to understand the digital मीडिया, व्हाट इज़ इट एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है उसमें हर एक चीज़ में डिजिटल मीडिया इन्वॉल्व है, चाहे वो जो है स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे यू आर pursuing some professional career or you're doing some professional certification. So हर चीज़ में आपका डिजिटल मीडिया इन्वॉल्व है. But then you have to see कि when it comes to children, what are the things which you can avoid when it comes to digital media. Parveen Khan, ma'am, assalamu alaikum. I hope you're fine. Thank you so much for joining and watching this session. It's lovely to see you over here. So ये चीज़ आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है. देन आपने ये चीज़ें देखनी है कि भाई वो जो डिजिटल मीडिया है, इज़ इट डिसएडवांटेज, लाइक वो क्या आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है या इट इज़ बेनिफिटिंग देम. सो ये चीज़ें आपने जो है एज पेरेंट अपने एंड पे जो है डिटर्मिन करनी है. लाइक व्हेन योर चिल्ड्रन आर इन स्कूल, अब हर एक स्कूल में छोटे से लेवल से लेकर जो है
बड़े लेवल तक, जब लाइक फ्रॉम नॉट फ्रॉम केजी और समथिंग, बट ये है कि जिस वक्त अर्ली ईयर्स में आते हैं बच्चे या इवन ग्रेड 3 और 4 में आते हैं, तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और देन स्टार्ट में जो है इट्स मोर ऑफ फन रिलेटेड एक्टिविटीज़, देन देर आर सर्टन थिंग्स इवन नर्सरी लेवल्स पे भी। अगर आप नर्सरी राइम्स देखें तो देर आर सर्टन स्कूल्स जो कि लैपटॉप्स और इस तरह के जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ करते हैं, चाहे वो वाइट बोर्ड फॉर्म में हो या टेक्नोलॉजी को जो है उन्होंने इंटर रिलेट किया हो विद वाइट बोर्ड क्लासरूम्स जो होते हैं। सो उसमें भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, जिसमें जो है बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं वाया मीडिया पैड्स या इस टाइप की चीज़ से। सो ये वाली जो चीज़ें हैं, यू एज पेरेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चों के लिए ज़रूरी है, उनके लर्निंग ईयर्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लाइक देयर वाज अ टाइम, हम लोग जिस जनरेशन से हैं, वी आर मोस्टली कॉल्ड द पोटैटो जनरेशन, क्योंकि हमारे टाइम में जो है लैपटॉप्स नहीं थे, मीडिया पैड्स नहीं थे, एंड वी हैड टू लर्न ईच एंड एवरी थिंग वाया द डायरेक्ट मेथड, जिसमें जो है ब्लैक बोर्ड्स इन्वॉल्व थे, वाइट बोर्ड्स भी उस तरीके से नहीं थे, बट ये है ब्लैक बोर्ड्स थे, चॉक्स थे, एंड वी वर इंट्रोड्यूस विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें जो है ज़्यादा जो है हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप हुई, राइटिंग स्किल्स ज़्यादा इसी ये जो एराज था इसमें ज़्यादा जो है एनहांस थी। अब एवरीथिंग इज़ डिजिटल। सो सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखेंगे, आप डिजिटल मीडिया को अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस में। तो आजकल के जो दुनिया है, आजकल के जो बच्चे हैं, उनके लिए एवरीथिंग इज़ इन एक्सेस ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सो ये तो होगी उनकी बेनिफिट के हवाले से। अच्छा, बेनिफिट के साथ आपने जो है ये चीज़ याद रखनी है कि इन सब चीज़ों में जो है लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि if the children are using this technology, it is for their learning, it is for their socializing, and it is for their entertainment as well। क्योंकि अब जो है अगर जो है फैमिली सिस्टम्स को देखा जाए या इन्वायरमेंट को देखा जाए या इकोनॉमिक सिनेरियो को देखा जाए, तो प्रैक्टिकली एवरी वन इन द फैमिली इज़ वर्किंग। इट्स नॉट जस्ट दैट कि जी अब्बा जी जो है काम कर रहे हैं तो अम्मा जी घर पे बैठी हैं। देयर वाज अ टाइम when mostly families consider that if a woman is sitting at home, it is her duty to bring up the children, और उनकी up grooming में उनका मेजर किरदार है। नो डाउट वो बात सही है, बट अब जो इकोनॉमिक सिनेरियोज है और जो चेंजिंग टाइम्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बोथ दी मेल एंड फीमेल, बोथ दी मदर एंड फादर आर वर्किंग। बट देन अगेन अगर वो वर्क कर रहे हैं, देन दे हैव टू कीप अ बैलेंस। जिस तरह मैं आपको अपने पिछले सेशंस में बताती रही हूँ कि आप जो भी करते हैं, चाहे आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसका आपको शौक है और आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, बट स्टिल देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन योर प्राइवेट लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। सो इतना ज़्यादा जो है प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ना चले जाएं कि पर्सनल लाइफ आपकी इफ़ेक्ट हो, इतना ज़्यादा जो है पर्सनल लाइफ की तरफ ना आ जाएं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इफ़ेक्ट हो जाए। दोनों तरीक़ों में जो भी एक्सट्रीम फॉर्म्स आप लेंगे उसमें आपका अपना ही नुकसान है, और आपके नुकसान के साथ आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके स्पाउसेस हैं, दे आर गोइंग टू बी एट द सफरिंग एंड। नॉट अनलेस यू मेक अ पैक्ट दैट एज पेरेंट्स, किसकी जो है लाइक देयर आर मैनी कपल्स, आई नो मैनी कपल्स जो कि दो बोथ आर वर्किंग, बट देन जिसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो they understand each other's professional requirement and they let the other person groom, ताकि जो है वो अपने प्रोफेशनल करियर को भी परसू कर सके। बट देन अगेन देयर can be times like if your children are small or they are in their school going ages, or they can't take care of themselves, they are still dependent on you, so then one spouse, which is mostly the female, she has to give up her career इन अ सर्टन वे, ताकि जो है या कोई वो ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर देती हैं जिससे जो है वो घर बैठ के कर सकें कुछ, और उनको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो बाहर की। क्योंकि अभी भी दो देयर हैज़ बीन एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, और सोच जो है थोड़ी बहुत चेंज हुई है, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि जिनकी एनलाइटनमेंट ज़्यादा है या जिनकी अवेयरनेस ज़्यादा है, तो दे डू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बट देन अगेन देयर आर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो वो ना अंडरस्टैंड करने में जो करियर है, एक दफ़ा वो उसको स्टॉप लग जाए तो बस उसको स्टॉप लग जाता है, देन इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट बैक इनटू रूटीन या गेट बैक इनटू जॉब्स।
क्योंकि देन पीपल डोंट टेक यू सीरियसली, दे थिंक कि ओके भी अगर एक दफ़ा जो है दिस पर्सन हैज़ गॉन ऑन लीव, तो देन देयर कैन बी अदर टाइम्स कि जब इनको कोई प्रॉब्लम आए एंड दे अगेन गो ऑन लीव। बट एक्चुअली में इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी टीम्स होती हैं, दिस इज समवन, ओके वालेकुम अस्सलाम एंड इट्स द मैसेंजर, ओके आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपकी जो है ओवरऑल ग्रूमिंग को इफ़ेक्ट करती हैं। सो ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी होती हैं व्हेन यू आर टेकिंग केयर एज पेरेंट्स फॉर योर चिल्ड्रन, एंड इवन एज पार्टनर्स यू नीड टू look at each other's professional capabilities and let them groom and let them shine in their own professional capacity. अच्छा, this is number one thing. नंबर टू थिंग अगेन डिजिटल मीडिया के लिहाज से आ जाती है, यू नीड टू हैव ओपन कम्युनिकेशन। अब उस ओपन कम्युनिकेशन में क्या है, उस ओपन कम्युनिकेशन में यू नीड टू sit down with your children and talk to them, and it has to be a very open and very frank communication. आपके चाहे बेटा है, आपकी चाहे बेटी है, and if they're in their teens या even their youths, so you need to talk with them and ask them, okay भाई आप जो है डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, what do you watch on it, और क्या चीज़ें हैं, like is it age appropriate, is it inappropriate, and you have to tell them साथ के साथ, if they tell you कि okay we watch these things, or then what you can do is you can sit with them and you can watch those programs, or you can watch whatever they are watching. क्योंकि जब तक आपकी ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगी, जब तक आप आपस में जो है कम्युनिकेट नहीं करेंगे, फ्रैंकली एक दूसरे के साथ ओपन नहीं होंगे, तो देन यू विल नेवर बी नोइंग एज अ पेरेंट कि व्हाट आर योर चिल्ड्रन वॉचिंग, या उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या उसके जो है कोई फ़ायदे भी हैं या नहीं फ़ायदे। सो जब आप ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, इट्स गोइंग टू हेल्प बोथ ऑफ यू। एज पेरेंट्स आपको हेल्प करेगा क्योंकि यू वुड बी नोइंग कि आपके बच्चे के इंटरेस्ट किस चीज़ में है। एज चिल्ड्रन बच्चों को ये चीज़ हेल्प करेगी कि दे वुड बी नोइंग कि पेरेंट्स जो है हमारे इंटरेस्ट में या हमें क्या चीज़ पसंद है उसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं, एंड दे आर ओपन अबाउट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। इट्स नॉट दैट कि जी माँ है तो वो शर्म हया में बैठी हुई है कि भाई नहीं भी बेटा है, मैं बेटे के साथ किस तरह ओपनली डिस्कशन करूँ कि वो कैसे कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं। नो, नॉट दैट कि कोई अल्लाह माफ़ करे कोई गंदे प्रोग्राम्स देखते हो का बच्चा, बट ये है कि यू हैव टू लर्न अबाउट देयर इंटरेस्ट, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स कि एज लाइक मे बी एज फीमेल्स आपको वो चीज़ें पसंद ना हो, मे बी यू आर नॉट अ स्पोर्टी पर्सन और आपके बेटे को जो है स्पोर्ट्स पसंद हो, मे बी you don't like fighting and thathua, you know these kind of movies, but boys they are more prone to see this tha tha tha, जो कि आपको जो है शायद इरिटेट करती हो। बट एज अ पेरेंट यू नीड टू अगेन एंड अगेन एज आई से यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन टू द अदर पर्सन शूज़, कि अगर आप अपने आप को उनकी जगह पे प्लेस करके देखें तो यू डेफिनेटली यू कांट चेंज योर जेंडर, बट ये है कि यू can facilitate your child to the maximum extent as you can, कि आप जो है उनके साथ जो है बैठ के देख लें उनको क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है, देन फाइंड सम कॉमन ग्राउंड्स जो कि आप लोग दोनों मिल के देख सके। लाइक हो सकता है कि आपको एक्शन मूवी पसंद हो और हो सकता है बच्चे को जो है वो गन फाइटिंग और इस तरीके की जो है मूवीज़ पसंद हो। सो देन फाइंड सम प्रोग्राम जिसमें जो है दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर हो, आप वो दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके जो आपस में बैठ के देख लें, आपकी भी इंजॉयमेंट हो जाएगी, बच्चे की भी इंजॉयमेंट हो जाएगी। तो दोनों के जो है मान रह जाएगा, बच्चे को भी नहीं होगा कि पेरेंट ने मेरे इंटरेस्ट की या मेरी पसंद की चीज़ नहीं देखी, तो आपको भी ये नहीं होगा कि भाई इसमें जो है ठाठा ज़्यादा थी तो भाई मेरा तो सर दर्द कर गया उसको देख देख कर। सो यू हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड इन एवरी थिंग। सिमिलरली ये जो है यानी इट्स ओके रईस नसीबुल्ला, यू आर सेइंग यो मेरी बहन कैसी हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपकी बहन बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आपकी बहन आज आपको जो है लेक्चर दे रही हैं कि भाई पेरेंट्स का क्या रोल होता है और बच्चों के साथ जो है किस तरीके से डील करना चाहिए। सो दिस इज़ अनदर थिंग, ओपन कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो जो है पेरेंट्स के लेवल पे हो, चाहे वो बच्चों के लेवल पे हो, चाहे वो स्पाउसेस के लेवल पे हो, यू नीड टू हैव ओपन कम्युनिकेशन। ओके, देन इसमें फिर एक जो अगेन मज़ीद चीज़ आ जाती है, यू नीड टू सेट बाउंड्रीज़। अब वो बाउंड्रीज़ किस तरीके से हैं कि वो बाउंड्रीज़, दोज बाउंड्रीज़ हैव टू बी क्लियर। अगर आपने अपने बच्चे को किसी चीज़ से मना करना है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, और किस चीज़ से मना करना है वो भी, दैट ऑल्सो हैज़ टू हैव अ क्लियर
डिफाइंड लाइन कि भाई ये चीज़ इस तरह, लाइक यू आर ऑन यूट्यूब, you can watch this but you cannot watch this, and it has to be very clear. क्योंकि if it's not clear तो then बच्चा जो है डाउट में रहेगा, and the बच्चा won't know कि you are you are telling the child something that he or she is not supposed to do. So boundaries have to be very clear, और किसी किस्म की एम्बिग्विटी उस बाउंड्री में नहीं होनी चाहिए. अच्छा, देन इन बाउंड्रीज में एक और जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू सेट टाइम्स. अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसकी जो है ना टाइमिंग्स जो है नहीं होते आमतौर पे, मोस्टली घरों में नहीं होते. पेरेंट्स जो है अपने स्क्रीन्स पे हैं, बच्चे अपने स्क्रीन्स पे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है सारे स्क्रीन्स पे बैठे हुए हैं, एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम. सो फॉर दैट अगेन ये सेटिंग बाउंड्रीज में आता है. यू हैव टू टेल योर चाइल्ड कि भाई ये आपका स्क्रीन टाइम है, एंड इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द चिल्ड्रन. अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए जो है यू हैव टू गूगल दिस अप कि उनके लिए कितना टाइम जो है इट्स स्पेसिफिक. बट देन अगर बच्चे एडल्ट्स हैं एंड दे आर इनटू देयर स्टडी मोड्स, और स्टडी में भी आजकल जो है मोस्टली ज़्यादातर जो चीज़ें हैं यू हैव टू trace it or Google it through the digital platforms, and then you have to make notes and you have to do a lot of things. That is where digital landscape comes in. So उसमें जो है आपका जो है एक टाइम होना चाहिए. आप उनको कहेंगे ओके भी स्टडी टाइम में जो है आप इतने टाइम के लिए वॉट एवर सब्जेक्ट्स आप कवर करें, यू कैन यूज़ दिस. बट देन बिफोर बेड टाइम 3 to 4 hours पहले जो है टेल देम कि भाई आप अपने जो डिजिटल टैब्स हैं या लैपटॉप्स हैं या कोई भी डिजिटल डिवाइस है उसको आपने बंद करना है. क्योंकि बिफोर गोइंग टू बेड योर माइंड इट हैज़ टू बी रिलैक्सड. अगर माइंड रिलैक्स नहीं होगा, उसमें मुसलसल जो है मोबाइल स्क्रीन्स आ रही हैं या आपके जहन में मुसलसल डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है, तो यू वोंट बी एबल टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, और नींद आती भी नहीं है. और जो नींद का टाइम होता है उसमें आप डिजिटल कोई चीज़ लेकर बैठ जाएं तो वो तो आपके वैसे ही नींद को ख़राब कर देती है. तमाम रात जो है ना जहन में जो है वही चीज़ें, वही स्क्रीन चलती रहती हैं. मोहम्मद सुलेमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन. राय शुजात Hussain, thank you so much for watching. Okay, so this is another thing regarding setting boundaries. अच्छा, देन जो है इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आम तौर पे आपको कहती हूँ कि भाई आप जो है ये सारी चीज़ें जो है कह तो देते हैं और बता भी देते हैं, बट देन यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. एंड लीड बाय एग्जांपल, व्हाट डू आई मीन बाय लीड बाय एग्जांपल? लीड बाय एग्जांपल इज़ कि आप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि भाई आपने इस टाइम से पहले, सोने से इतना घंटे पहले आपने अपने टैब्स, अपने लैपटॉप्स, अपनी डिजिटल स्क्रीन्स छोड़ देनी है. बट यू एज पेरेंट आर नॉट डूइंग दैट. So that's not what children are going to learn. Children always learn what they see around their surroundings. If they are seeing you on the laptop, on the mobile, continuously from morning till night, so it's the same they're going to reciprocate. So if you want to set their boundaries, you firstly to they can, when you are having an open conversation with them and open communication, you have to tell them certain things. You have to tell them, look, if I'm on the laptop, I'm there for my work, and I'm an adult, and I can induce this time, and I have to utilize this time. जो भी आपका working environment है, if you're working for a company, then definitely उनके अपने work hours होते हैं, आपने उन times तक काम करना है, चाहे वो remote setup है. But then again, if you're working at your own pace, तो आपने क्या करना है, you have to उनको भी बताएं, और ख़ुद भी जो है आप अगर काम कर रहे हैं तो यू टेक ब्रेक्स, यू गेट अप, यू डू सम एक्सरसाइज, आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आप पानी पिएं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें. तो साथ के साथ आपने हेल्थ को भी फोकस में रखना है. बट देन बाउंड्रीज भी आपने सेट करनी है, एंड यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. जो आप कर रहे होंगे बच्चे आपको देखकर ही पिकअप कर रहे होंगे. वो फैमिलीज़ जहाँ पर जो है सिर्फ ये देखकर कि भाई बच्चे हैं इनको टैब नहीं देना, और आपको टैब और मोबाइल्स लेकर बैठे रहते हैं, बच्चे उस तरीके से नहीं सीखते. वो यही सीखते हैं कि जी पेरेंट हर वक्त लेकर बैठे रहते हैं, तो अगर हम लेकर बैठ रहे हैं तो उसमें कौन सी ऐसा जो है ना कोई गुनाह हो गया तो हम भी ये काम कर सकते हैं. सो यू हैव टू टेल देम कि ओके this is not right, कि I do not want to be on tab for such a long time. But then again you have to set an example. आपने अपने टाइम्स भी ठीक करने हैं. इस तरह नहीं है कि आप जो है कंप्यूटर पे बैठे हुए और बच्चे को कह रहे हैं नहीं तुम्हें नहीं मिलना. क्योंकि चिल्ड्रन
they are mini forms of adult humans, and they have so much questions and curiosity to ask, and they are so logical. So अगर हम बच्चों को ये समझें कि भाई ये तो बच्चे हैं, बेवकूफ़ हैं, इनको क्या समझ आएगा, never doubt them, क्योंकि that is a very big mistake which you are making as a parent. Never doubt a child. अगर बच्चा कोई बात कर रहा है, listen to the child what he or she is saying, क्योंकि they would at times come up with such solutions जो शायद आपके भी कभी जहन में ना आए. So take them as little men who are there to discuss different things, and you can listen to them and then involve them into decision making even from a young age. आपको पता है आपके बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज़ है, इवन दो देर स्मॉल चिल्ड्रन, वो बट अपने लिहाज से वो आपको जो है ऐसे ऐसे जो है मशवरे देंगे जो आप शायद एडल्ट होकर भी ना ले सकें. So don't underestimate them, take their advices, involve them into decision making, and see, and then you can see कि आपकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आती हैं. So जो कंसेंसस है वो तो जो है इट्स पार्ट ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम, एंड वी नीड टू डू कंसेंसस. वो कंसेंसस जो हम बड़ों के साथ करते हैं वो कंसेंसस हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं. सो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. अच्छा, देन जो है इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ मीडिया लिटरेसी. सो मीडिया लिटरेसी में भी अगेन यू हैव टू टेल योर चिल्ड्रन कि व्हाट आर द थिंग्स विच दे कैन सी, और किससे वो देखकर जो है ना दे कैन लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन टू डिजिटल लैंडस्केप. नवीद इकबाल, नाइश, thank you so much for joining and watching this session, and you have enrolled for, I mean, you're coming on this session for the first time. Okay, so media literacy is very important. और then again media literacy में you have to educate your child regarding privacy rights, regarding what is legal, regarding copyrights, regarding violence, regarding cyber security. So ये सारी जो चीज़ें हैं, now again these all depend on the age of the child. So बच्चा जिस एज का होगा उसके मुताबिक आपने उसको इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करनी है. ये नहीं कि 6 साल का बच्चा है तो आप उसको बता रहे हैं कि भी साइबर सिक्योरिटी क्या है, या आप जो है अपने राइट्स को जो है किस तरीके से प्रिवेंट कर सकती हैं. 6 साल का बच्चा ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, एंड इट इज़ टू हैवी डोज. ये हैवी डोज आपने उसको नहीं देनी. येस, बट ये जब आपका बच्चा जो है 10-11 साल का हो, इवन 12-13 साल का भी हो, तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू स्टार्ट इम्पार्टिंग, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू देम इन बिट्स. जिस तरह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप उनको बताते हैं कि ओके यू एम्पावर देम, यू एनलाइटन देम, यू टेल देम कि ओके दीज आर योर राइट्स, ये आपके प्राइवेसी राइट्स हैं. इफ़ सो एंड सो person says such and such thing to you in school, you are not going to keep it to yourself, you are not going to fear anyone, you are going to directly go to your teacher. You have आप बच्चों को अपने जो पर्सनल नंबर्स हैं वो याद करवाते हैं, अपने नाम याद करवाते हैं स्कूल जाने से पहले. सो व्हेन दे गो इन स्कूल एंड दे कम अंडर any kind of threat or pressure, they can always go to the admin और आपका नंबर मिलाएं और आपको जो है फ़ोन पे जो है बता दें कि भाई इस तरीके से जो है प्रॉब्लम हो रहा है. सो आप इस तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं इन स्कूल्स. देन अगर जो है ऑनलाइन वो है तो आप ऑनलाइन उनको इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं. यू टेल देम डूज, यू टेल देम कि ओके आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो, लाइक इफ़ दे आर एडल्ट्स या इवन इफ़ दे आर इन द टीन्स, यू टेल देम कि एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन स्टैंडर्ड. हर एक के कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, आपने उन कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करने हैं. देन एज एन इंडिविजुअल आपने अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है. यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग विच इज़ गोइंग टू हार्म यू एज एन इंडिविजुअल, या कोई जो है आपका गलत फ़ायदा उठा सके. सो दीज आर द थिंग्स जो आप बच्चे को एक स्पेसिफिक लेवल पे गाइड करना शुरू करते हैं. और सारी इन्फॉर्मेशन आप एक साथ नहीं दे देते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आप जो है एज इट इज़ ही दे देंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डाइजेस्टेबल. यू हैव टू ब्रेक इट इनटू स्मॉल चंक्स, इनटू बिट इंफॉर्मेशन, एंड देन इम्पार्ट दैट इंफॉर्मेशन. क्योंकि जो आप बिट में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे दैट्स गोइंग टू बी ईजिली कॉम्प्रिहेंडेबल फॉर द चाइल्ड, and it is going to be digestible as well. But then again,
आपने प्राइवेसी जो है उनकी प्रिवेंट करनी है. यू हैव टू टेल देम कि दीज आर द चैनल्स विच यू कैन वॉच एंड देन दीज आर द चैनल्स, सर्टन चैनल्स विच यू कैन नॉट वॉच. जिस तरह यूट्यूब है, अब तो बच्चों के लिए यूट्यूब फॉर किड्स है, तो आप जो है उनको वो यूट्यूब का चैनल लगा कर दे सकते हैं. दैट इज़ फॉर द लर्निंग पर्पजेज़. अगेन एंटरटेनमेंट के लिए आई वुड से देर आर सो मैनी यानी चैनल्स जहाँ पर एजुकेशनल एंटरटेनमेंट है, जहाँ पर डिफरेंट पजल्स हैं, डिफरेंट माइंड ट्विस्टर्स हैं. सो दीज आर द थिंग्स जो कि बच्चे इनसे लर्न करते हैं. अच्छा, फिर उसमें जो है ना मीडिया लिटरेसी के बाद एक जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ क्वालिटी टाइम. अभी जो ज़्यादातर पेरेंट्स को इश्यूज पेश आते हैं वो ये हैं कि भाई बच्चे ज़्यादातर टाइम जो है गैजेट्स पे होते हैं और पेरेंट्स के साथ उनका टाइम कम हो गया. अब एक्चुअली जो है ना इट्स द अदर वे राउंड. I won't blame the parents क्योंकि the economic conditions they are so tight for everyone कि parents जो है यानी वो खुद भी मजबूर हैं. अगर वो चाहें भी तो it can't be कि भाई एक पेरेंट जो है घर पे जो है एक्सक्लूसिवली बच्चों को अटेंड करे और एक पेरेंट जो है बाहर निकल के जो है कुछ अर्न करे. सो everyone in the family they have to play their role in some form, चाहे वो जो है insignificant भी हो but still they are playing that role. But then again a mother has a lot of duty क्योंकि उन्होंने जो है ना सिर्फ जो है बच्चों की नशो नुमा करनी है, she has to look for the overall home and outside as well. So ये चीज़ें जो है एज पेरेंट्स एंड एज कपल्स वी नीड टू डिस्कस इट अमंग आवर सेल्व्स कि किस तरीके से चीज़ें लेकर चलनी है. अच्छा, बट देन अगेन अब फिर इसमें वही बात आ जाती है कि जब आप चीज़ें लेकर चल रही हैं यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन. अब वही क्वालिटी टाइम है, अगर वो क्वालिटी टाइम आप नहीं देंगे तो वो बच्चे जो है गैजेट से पूरा करेंगे. अब गैजेट्स उनको इन्फॉर्मेशन तो दे देगी, उनको जो है यानी सोशलाइज वो गैजेट पे करेंगे, बट देन अगेन वो जो सोशलाइजिंग होगी दोज people across the board they are not going to be real people, they are the digital world people. So for as a human being you need people जिनके साथ आप you have to build a connection, a human connection. So the digital space इस पे जो connections हैं they are pretty much normal and pretty much good connections as well. But एक ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है, ह्यूमन सर्टन ह्यूमन थिंग्स होती हैं जिसके लिए आपको ह्यूमंस चाहिए. सो उसके लिए जो है व्हाट एज पेरेंट्स व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन इंक्रीज दैट गेट टुगेदर टाइम विद योर चिल्ड्रन. और यह कि जब आप बच्चों के साथ बैठे होते हैं यू कैन कडल देम, यू कैन हग देम. सो ये चीज़ें जो है यू कांट डू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लर्निंग कर सकते हैं, आप सोशलाइजिंग कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट एक्सचेंज दीज थिंग्स. नाउ ये जो चीज़ें होती हैं, हग हो गया, अगर बच्चे को आप हग दे रहे हैं, बहुत गंदा मूड हो बच्चों का, इवन एज एडल्ट्स भी गंदा मूड हो, बट जस्ट जस्ट अ सिंपल हग फ्रॉम अ मदर और अ फादर और अ सिबलिंग, इट सूट सो मच. कभी जो है यानी आई एम श्योर आप लोगों ने अपने घरों में जो है करके देखा होगा कि भी बहुत आप जो है एज बेटा बहुत गंदे जो है मूड में घर आए हैं और आपकी वालदा हैं और वालदा आपसे जो है आते साथ पूछती हैं कि बेटा, या पंजाबी में पुत्र कैसे हो कि वेल आई डोंट नो पंजाबी सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू स्पीक इट. सो जो उर्दू है मैं वही बोल लूँ तो काफ़ी है. तो वो जो है वालदा आपसे पूछती हैं, आपके माथे को चूमती हैं और आप देखते हैं कि भाई आपका जो गुस्सा है और आपकी जो टेंशन है वो एकदम दूर हो जाती है. वो आपके जो है सर पे हाथ फेरती हैं, आपकी कमर पे हाथ फेरती हैं, एंड यू फाइंड अ सॉलेस इन इट. बट देन अगेन दिस इज़ द सॉलेस विच यू कैन नॉट फाइंड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. वहाँ पर जो है एवरीथिंग इज़ वर्बल, या फिर इमोजी लाइफ है या इमोजीज़ है, और ऐसे ऐसे इमोजीज़ हैं जिनकी आपको समझ ही नहीं आती कि भाई इस इमोजी का तो ना सर है ना पाँव है, तो आप इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करें. बट देन अगेन दैट्स द टेक्नोलॉजी एंड यू हैव टू be in touch with the technology क्योंकि if you're working online then you have to get a know-how of how these emojis work. But then
क्वालिटी टाइम अगेन उसमें आता है कि आप जो है एज पेरेंट्स जो है यू कैन डेजिग्नेट डिफरेंट टाइम्स। आप लंच पे बच्चों के साथ बैठे, आप खाने पे उनके साथ बैठे, you talk about like if you are picking your children from school, like this is what I do when I go and pick up my children. The first thing I ask them is सबसे पहले तो भाई सलाम, and then I ask them how was your day and what's new about the day। आज दिन में क्या हुआ, आज क्या किया, आज किसी के साथ फड्डा तो नहीं किया, या किसी ने आपके साथ तो नहीं फड्डा किया, या जो है आपके जो है टेस्ट था, हाउ वाज दैट टेस्ट, ओके व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिड यू परफॉर्म, ओके हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द एग्ज़ाम्स। सो ये जो चीज़ें हैं, यानी आप बच्चों से वो चीज़ें पूछो जो वो करके आई हैं, ना कि जो है आप अपने जो है आते साथ उन्हें कहो कि हाँ मेरा दिन तो ऐसा था, मैंने जो है सुबह ये किया, इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, उसने मेरा टाइम वेस्ट किया, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव। सो दीज आर नॉट द थिंग्स, this is not quality time. Quality time is when you are sitting with the child, you are exclusively focusing on the child and asking the child about his day, or what is that is bothering him or her, or what is that they want to share, and ये इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, नाउ दैट इज़ क्वालिटी टाइम। और ये क्वालिटी टाइम कोई ऐसा नहीं होता कि आपको स्पेशली अपने डे में से निकालना पड़े। आप इर्द गिर्द घूमते फिरते जो है बच्चों से जाकर पूछ सकते हैं। देर आर मेनी टाइम्स व्हेन आई एम टेकिंग दीज सेशंस एंड माई चिल्ड्रन दे आर पीपिंग इन साइड, एंड आई जस्ट लुक एट देम एंड आई स्माइल एट टाइम्स, एंड दे नो कि ओके अम्मी अभी बिजी हैं। बट व्हेन आई एम ऑफलाइन, जैसे ही मैं जो हूँ यहाँ से सेशन से ऑफ जाती हूँ, मैं जाकर सबसे पहले बच्चों को पूछती हूँ, अच्छा आप आए थे, खैरियत थी, आपको कुछ चाहिए था। So though they are teens or they are mashallah they are mature enough to do things on their own, but still since I'm the mother, तो वो आकर जो है लाजमी जो है मेरे से जो है पूछते हैं कि भाई हम ये कर लें। So this is the kind of attachment and relationship and bonds that you build with time। और ये जो है इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर सो मच टाइम। आप अगर ये सोचें, लाइक आई हैव सीन पेरेंट्स हु डू नॉट गिव द टाइम टू चिल्ड्रन, रादर वो उनको जो है उसकी रिप्लेसमेंट में कोई चीज़ ला देंगे, कोई किसी किस्म की भी ब्राइब कर देंगे। कभी जो है कोई खाने की चीज़ ला देंगे, कभी कोई ऐसी चीज़ हो कि बच्चे को चाहिए हो वो ला देंगे, जस्ट कि भाई वी डोंट हैव टाइम, सो अगर हम ये चीज़ ले देंगे तो ये चीज़ जो है इट्स गोइंग टू बी एन ऑल्टरनेट टू व्हाट वी कैन गिव। सो बच्चे जो है वक्ती तौर पे तो शायद उन चीज़ों को जो है इंजॉय कर लें, बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग। आप इन फ्यूचर ईयर्स जब भी बच्चों से बात करेंगे ना, एंड इफ़ यू आस्क देम के व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट योर चाइल्डहुड, तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू टेल यू द वर्स्ट थिंग्स, और ऐसी चीज़ें जो शायद आपके जो है ज़हनो गुमान में भी ना हो कि भाई मैंने जब ये बच्चे थे तो क्या इस तरह की कोई चीज़ की थी, बट दे वुड बी रिमेंबरिंग। आप अगर उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे तो वो उसको भी याद रखेंगे कि जी आप बचपन में हमें बहुत डांटती थी, या आप बचपन में हमें बहुत मारती थी। तो वो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखते हैं, और वो ये चीज़ें जो है ऐसा सच नहीं याद रखते कि भाई आप गुस्सा करती थी, बट ये है कि आप मोहब्बत भी करती थी, और आप किस किस तरीके से जो है अपने आप को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है हमें जो है टाइम देती थी या हमारे लिए करती थी। बट एज पेरेंट्स यू रिमेंबर, और आप जो करते हो आप बच्चों पे एहसान नहीं करते। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर ड्यूटी, यू नीड टू डू दिस। और शायद इसी वजह से अल्लाह मियाँ आपको पेरेंट्स बनाता है ताकि आप वो एहसास कर सकें जो शायद एज बच्चे होते हुए आपने अपने पेरेंट्स का नहीं किया। बट देन व्हेन यू ग्रो टू बी अ पेरेंट, you exactly know कि okay we used to do this as children and what did our parents used to do in that circumstance। so बच्चे जिस भी एज ब्रैकेट में हो, एज पेरेंट्स यू नीड टू अपडेट यूर सेल्फ, अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करें। ये ना सोचें कि भाई मैं इस जनरेशन की हूँ तो बच्चे मेरे जो है जेनजी हैं तो मैं पोटैटो जनरेशन हूँ। सो इवन दीज ये जो जनरेशन है पोटैटो जनरेशन, I didn't know about it until I searched about it कि भाई what is this Gen Z generation, और जो बच्चे हैं वो Gen Z अपने आप को क्यों कहते हैं। So when you search about it you come to know so about our youth या our Gen Z कि भाई उनके क्या temperament है, and what do they think and how do they feel and how do they look at the world। So you have to, as parents, you have to update yourself, you have to update your knowledge, you need to go along with them। क्योंकि अगर
आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे. कम्युनिकेट भी आप तब भी कर सकेंगे ना व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू दे थिंक एंड हाउ डू दे थिंक लाइक. सो these things are very important and these things come again in quality time. अच्छा, देन जो है इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है विच आई वांटेड टू डिस्कस पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में कि जब आप बच्चों को टाइम दे रहे हो तो यू हैव टू लुक फॉर ऑफलाइन एक्टिविटीज़. अब वो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ क्या हैं? जैसा मैंने कल भी जिक्र किया, ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में यू कैन ऑलवेज play board games, या you can always do activities which involve creativity. आप कैरम खेल सकती हैं, like it was our favorite time game, कैरम बोर्ड, जिसमें क्वीन और वो ब्लैक एंड वाइट जो है डाइसेस होते हैं, गीटियाँ होती हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड गेम एंड इट्स अ फैमिली गेम. देन स्क्रैबल इज़ अ वेरी गुड गेम, उससे आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बिल्ड होती है. दो आई रिमेंबर जब हम बचपन में खेलते थे तो उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि भाई ये गेम क्यों खेलते हैं. इसमें जो है वर्ड आप बनाना चाहते हो उसके लिए तो आपके पास कभी वो होते ही नहीं है, लेटर्स होते ही नहीं हैं, और वो लेटर्स आपको फिर जो है लेने पड़ते हैं, और जो आपके पास लेटर अवेलेबल होते हैं. बट दैट्स एन एक्सीलेंट गेम टू बिल्ड योर वोकेबलरी एंड डू एजुकेशनल थिंग्स. सो दीज थिंग्स ऑलवेज हेल्प. देन अगर जो है बच्चे दे आर मोर क्रिएटिव, you can give them legos. Lego is it's a whole new dimensional world, और उससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं. आपकी बस सोच है, यू जस्ट गिव योर चाइल्ड दैट लेगो, और वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बना कर दिखाएंगे ना कि आप भी सोचेंगे कि भाई ये चीज़ जो है ये किस तरीके से बन गई, और ये किस तरह बना दी कि ये तो जो है इस लेगो से तो ये चीज़ शायद बन ही नहीं सकती. बट दीज आर द थिंग्स जिससे आप जो है क्रिएटिविटी भी उनकी इंट्रोड्यूस एक्सपो एनहांस कर रहे होते हैं. यस, उनकी क्रिएटिविटी भी एनहांस कर रहे होते हैं. एंड यू आर एक्चुअली विटनेसिंग व्हाट काइंड ऑफ माइंड्स दे हैव. सो ये सारी चीज़ें जो है उनके आगे काम आती हैं. अगर जो है एक बहुत ही क्रिएटिव माइंड है, लाइक आज वो लेगो से चीज़ें बना रहे हैं, कल को हो सकता है दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और दे कैन इवन बी साइंटिस्ट. सो यू हैव एज पेरेंट यू हैव टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स एंड दीज आर ऑल द थिंग्स. और फिर इसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आती, ये भी हो सकता है कि उन्होंने यानी हो सकता है कि टीवी पे जो है कोई चीज़ उन्होंने देखी हो, बट देन वो वही चीज़ रेप्लिकेट कर दें थ्रू दी थ्रू दी लेगोज, या इवन पजल्स अगर वो बनाते हैं, या इवन जो है देन देयर इज़ दैट मैथमेटिकल क्यूब, वो भी बच्चे बड़े शौक से जो है उसको भी करते हैं. एंड नाउ दीज आर ऑल क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंग्स, और एनालिटिकल गेम्स होती हैं, और बहुत सी ऐसी गेम्स होती हैं जो कि स्कूल में इंट्रोड्यूस की जाती हैं, विच एज पेरेंट्स अगर हम जो घर पे भी कर रहे हों तो दे आर रियली वेरी हेल्पफुल. लाइक आई रिमेंबर कि स्कूल में जो है व्हेन माय चिल्ड्रन वर यंग, तो इनके स्कूल में सेंसरी एक्टिविटीज़ होती थी, और उसमें जो है लाइक एट दैट टाइम नहीं समझ आता था कि वाई आर द टीचर्स डूइंग दिस. बट देन व्हेन यू एनालाइज, व्हेन यू स्टडी, तो आपको समझ आता है कि बी these activities are very important to develop the sensory and the coordination skills. अब कोऑर्डिनेशन स्किल्स के लिए के बजाय आप कहेंगे आप डॉक्टर्स के पहुंच जाएं, हाँ भी बच्चे में जो है कोऑर्डिनेशन स्किल्स नहीं है, तो वो तो आप अपने एंड पे डेवलप कर सकते हैं. और किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, यानी जिस तरह हम लोग जो है जब छोटे थे एंड आवर मदर यूज टू कुक. सो जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वो जो दालें साफ़ करने का प्रोसेस होता है, दालों में से जो है अपने कंकर और जो एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं खामखा के मटेरियल होते हैं, जो पत्थर वगैरह होता है, ताकि अगर आप दाल बनाएं तो उसमें पत्थर ना आए. तो आप जो है यानी हमारी जो मदर्स थी वो तो हमें वो दे देती थी कि भाई दाल डाल के दे दी कि हाँ भी अब इसको चुनो, या जिस तरह जो है चावल हैं, चावल को साफ़ करना है तो आप उसमें से जो है पत्थर और जो सख्त वाला जो है कवर्ड वाला चावल होता है वो निकाल देती हैं. सो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या करती हैं, ये आपकी सेंसरी और कोऑर्डिनेशन स्किल्स डेवलप करती हैं आपकी यानी बच्चों की. सो आप जब बच्चे होंगे आपकी पेरेंट्स ने भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ की होंगी. सो दिस इज़ हाउ यू ग्रूम योर आई एम सॉरी नॉट ग्रूम योर पेरेंट्स, दिस इज़ हाउ यू ग्रूम योर चिल्ड्रन, कि आप उनको छोटी छोटी जो है ना छोटे छोटे टास्क देते हैं, किचन में अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं. एंड दिस ऑल्सो कम्स इन विद इन क्वालिटी टाइम,
कि आप उनको अपने साथ साथ रख रही हैं, इन्वॉल्व करें, हर चीज़ में करें। आप किचन में काम कर रही हैं, वहाँ पर आप उनको अपने साथ उस काम में इन्वॉल्व करें कि ओके आई एम डूइंग दिस, तो आप ये कर लें। या फिर जो है आप अगर जो है लाइक इफ़ लॉन्ड्री आप कर रहे हैं तो अगर आपका बेटा है, सिंस men they are prone to have more strength, so what you can do is कि वो जो कपड़ों की भरी हुई बास्केट है जो शायद आपके लिए शायद थोड़ी भारी हो, तो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं कि बेटा जाओ जाकर इसको बाहर जो है तार पे डाल दो। सो दीज आर द थिंग्स, ये अगेन जो है पेरेंटिंग रोल में आती हैं। और ये जो चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा करके आप उनको सिखाते हैं। नाउ इज़ द टाइम कि हम जो है इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि भाई बच्चे जो है जब थोड़े बड़े हो जाएं तो उनको किसी के साथ लगा दो ताकि वो कोई काम सीख लें। बट देन अगेन कोई ऐसा हो भी तो ना, कोई भरोसे वाला भी तो हो। बाहर कितनी इनसिक्योरिटी है, किस किस किस्म के लोग हैं। जब तक आपके कोई जान पहचान वाला ना हो जिसको आप जो है ट्रस्ट कर सको विद दी लाइफ एंड इज़्ज़त ऑफ योर चाइल्ड, ओनली देन कैन यू आस्क सच पीपल ना कि भाई मेरे बच्चे को आप जो है काम सिखा दें। और उसी तरीके से आप बच्चे को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। और जब तक आपको वो लोग नहीं मिलते तो आप यही कर सकते हैं कि एज अ पेरेंट आप बच्चे को अपने साथ रख कर उसको काम सिखाएं और उसको जो है वर्ल्ड को फेस करने का जो है तरीका सिखाना शुरू करें कि भाई दिस इज़ द वर्ल्ड और आपने रियल वर्ल्ड में रहना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ डिजिटल स्पेस। अब डिजिटल स्पेस में अगेन नुकसान ये होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिजिटल स्पेस में दे हैव fail to realize कि भी digital space is a digital space and it's nothing compared to the real world. So जब आप real world में आएंगे you cannot act as you act in virtual reality या 3D reality या metaverse में तो चीज़ें digital form में हैं। You have to come out in the real world. सो रियल वर्ल्ड की भी आपने ही एज पेरेंट्स आदत डालनी है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको टाइम दें, उनको क्वालिटी टाइम दें, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी आप काम करें उसमें बच्चे आपके साथ हों, एंड देन उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन हो। ऑल्सो यू नीड टू मोनीटर एंड सुपरवाइज रेगुलरली, क्योंकि एंड यू डोंट हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट इट कि भाई आप जो है मोनीटर कर रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है। लेट इट बी मोर ऑफ कैजुअल, नॉट प्रोमिनेंट टू देम। येस, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको वैसी समझ आ जाती है कि पेरेंट्स जो है हम पे नज़र रख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किन दोस्तों से बात कर रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे क्या चल रहा है। बट व्हेन दे आर यंग यू लाइक व्हेन दे आर नॉट दैट मैच्योर, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू, अगर आप लोगों की इतनी ओपन कम्युनिकेशन है ना, देन डोंट एनकरेज दिस हैबिट ऑफ पुटिंग पासवर्ड्स। क्योंकि पासवर्ड्स में क्या होता है, अगेन यू कैन ऑलवेज टेल देम कि भाई देखो अगर आप किसी जो है प्रॉब्लम में हो और मुझे आपका जो है मोबाइल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो आई नीड टू नो द पासवर्ड। इफ़ आई डोंट नो द पासवर्ड, हाउ एम आई गोइंग टू हेल्प यू? So you have to be very logical. You have to come up with evidence and logical evidence. So as parents, these are the things and these are the duties and responsibilities. We have to do these things. क्योंकि अगर हम इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, और बच्चे जो भाई से सीखेंगे वो हमें गवारा नहीं होगा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल एज वेल। सो इस तरीके से आप मोनीटर एंड सुपरवाइज कर सकते हैं। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं एंड दे डोंट नो द गुड एंड बैड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, सो व्हाट यू कैन डू इज़ गूगल जो है कंट्रोल्स होते हैं, आप उनके मोबाइल पे कंट्रोल लगा सकते हैं। सो यू वुड बी एग्जैक्टली नोइंग एंड सुपरवाइजिंग कि अगर वो कोई ऐप डाउनलोड करते हैं विच इज़ नॉट एज स्पेसिफिक, तो आपको वो मैसेज आ जाएगा। सो यू कैन ऑलवेज पुट अ लॉग और यू कैन ऑलवेज से कि डोंट ग्रांट इट। So you can do these things, and these are very helpful tips as well. अच्छा, ऑफलाइन हॉबीज़ का मैंने आपसे ऑलरेडी जिक्र कर दिया कि बोर्ड गेम्स करें। देन अदर देन दैट, जिस तरह आप खुद जो है अपना बैठ के काम कर रही हैं एंड यू गेट अप एंड गो एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, या यू गो एंड डू मॉर्निंग वॉक, इसी तरीके से बच्चों में भी ये आदत जो है डालें। चाहे वो आपके साथ मॉर्निंग वॉक करें या आपके साथ इवनिंग वॉक करें, या एक्सक्लूसिवली इफ़ दे आर इनटू एक्सरसाइजेज they can always do exercise, or they can just walk in the house. So अभी जो बच्चे हैं दे आर वेरी मच फिटनेस कॉन्शियस। सो आपको उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि बेटा एक्सरसाइज कर लो या वॉक कर लो, वो अपने एंड पे करे होंगे। बल्कि उनको देखकर आप खुद इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि आप खुद भी एट टाइम्स ये चाहते हैं कि भाई आप सुबह शाम वॉक करते रहें, इफ़ टाइम परमिट्स ऑब्वियसली। अच्छा,
देन इसमें जो एक लास्ट चीज़ है विच आई वुड से, दैट इज़ यू नीड टू फॉस्टर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. अब जब आप ओपनली कम्युनिकेशन करेंगे, आप बच्चों की बात सुनेंगे एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, सो इससे जो है ना सिर्फ आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा बल्कि इनफैक्ट एक रिस्पेक्ट का जज्बा भी आएगा. बच्चों को पता होगा कि ओके पेरेंट्स रिस्पेक्ट व्हाट वी आर डूइंग एंड दे रिस्पेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड दे रिस्पेक्ट आवर थिंकिंग एज वेल. सो इससे आपके बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ मोर गुड एंड इफेक्टिव वे. So this is all regarding today's topic, parents' role in the digital space. और देन अगेन वही बात है कि टेक्नोलॉजी को आपने सर पे सवार नहीं करना. आपने टेक्नोलॉजी को इस तरीके से लेना है कि दिस इज़ हेयर फॉर गुड, और ये जो है बच्चों का नुकसान नहीं कर रही. जहाँ तक लर्निंग की बात है, जहाँ तक सोशलाइजिंग की बात है, किसी हद तक एंटरटेनमेंट की बात है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि बच्चे इन डिजिटल लैंडस्केप से ड्राइव कर रहे हैं. देन आप जो है जहाँ पर लर्निंग आती है, उस लर्निंग में इट्स नॉट जस्ट एजुकेशनल लर्निंग. आप बच्चों को अगेन उस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि दे कैन लर्न अ स्किल फ्रॉम दैट डिजिटल स्पेस. तो जो भी उनका जो है पढ़ाई का टाइम है या उनका ऑफ टाइम है, तो दे कैन ऑलवेज गिव दैट टाइम टू लर्निंग समथिंग. सो ये जो चीज़ें होती हैं, इनको जो है आप नुकसानदेह नहीं कह सकते. नुकसानदेह वो होता है कि जब you fail to understand your role as a parent. If you are not failing to understand your role as a parent and you are doing what is required by a parent and children are doing what is required by them as children, अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो बच्चे बच्चे नहीं कहलाएंगे ना. तो पेरेंट्स का और फिर बच्चों में जो है कोई डिफरेंस होना चाहिए. एंड दैट्स वाई अल्लाह क्रिएटेड पेरेंट्स, कि पेरेंट्स नो हाउ टू बी पेरेंट्स. Though it's a very difficult task and every day is a learning, it's a learning period and it's a journey and you learn every day. When it comes to children, you are learning. तो 24 घंटे जो है ना, यू आर लर्निंग कि भाई अच्छा बच्चा अब आपका इस एज ब्रैकेट में है, व्हाट इज़ दैट इज़ गोइंग टू सॉरी व्हाट इज़ दैट विच इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट हिम, या इसकी जो है इस एज ब्रैकेट के जो बच्चे हैं उनकी क्या थिंकिंग होती है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, या कौन सी चीज़ें हैं जो कि चैलेंजिंग है उनके लिए. एंड देन यू हैव टू बी देयर फॉर देम. अगर बच्चे आप में ट्रस्ट प्लेस कर रहे हैं तो देन लिव अप टू दैट ट्रस्ट. और इसी तरीके से यू विल बी एबल टू फॉस्टर गुड रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन एज पेरेंट्स. So this is all what I wanted to discuss today. Now let me see if anyone has any question for me. Simon Badar, thank you so much for watching this session. And let me see if I have missed anyone. Mohammad Shakil Azim, thank you so much for joining and watching. And now if there's anyone who wants to come at the top of my screen, you have to come at the top. और मुझे आपका ग्रीन कैमरा बटन नज़र आएगा तो आई कैन ब्रिंग यू ऑनलाइन ऑन कैमरा लाइव. And if no one wants to come, you can just let me know कि आज का जो सेशन था, was it clear for you people or was it difficult? So if it was clear, so I can see your emojis, if there are emojis here. Okay, let me just log into my Facebook, then I can see. Okay, so if anyone has okay, the overall I guess it's a bit slow. My internet is a bit slow, so I don't know what's at your end. Okay, so now I have logged in. Now just let me know if you people have any question, and if there's no question, then I can sign off and then come live again tomorrow. Okay, yes, in the morning there were some people who said I did not come live today in the morning. Yes, there was a change of schedule. Actually, usually I go to walk. When I drop my kids, I directly go to the park and I do the vlogging and talk to you people. But today there was a change of schedule regarding the exam schedule, so I could not go into the park because I had to drop my child. And then since the time was too short, like I had to drop her and then I had to pick her up again. So the time जो जिस टाइम पे मैं वॉक करती हूँ वो टाइम जो है फिर उसी में निकल गया. So I couldn't do the walk, I couldn't do the vlogging.
but inshallah I'll try my best कि कल इस तरह ना हो, and I can do the walk and do the vlogging and talk to you people. So in case I do not come live, I would log in from the comfort of my home, and I'll do some kind of talk from the comfort of my home, and let's see what happens tomorrow. So till then, till tomorrow, bye bye and take care. Allah Hafiz.